Hello students, welcome. From today we started our course Computer Science and Application class 10. Here's the syllabus Computer Science and Application class 10. There are 5 units. Unit 1 Networking, Unit 2 HTML, Unit 3 Cyber Ethics, Unit 4 Python and Unit 5 Practical. The total theory marks is 30 and the practical marks is 70. Total 100 marks. The first unit is networking. In networking, the first topic is internet. So, what is internet? Internet क्या है? The internet is a network of computers linking many different types of computers all over the world. Basically, internet is a interconnected between different types of networks. एक networks है बहुत सारे computers के बीच में. It is a very large wide area network. ये एक wide area network है connecting computers and networks all around the world. Okay. Next, it makes it possible for millions of users to connect to one another via telephone lines, cable lines and satellites. Basically, internet कैसे connected है? Through telephone lines, cable lines and satellites. Next, what we learn from these chapters? यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे? यहाँ पे हम लोग सीखेंगे history of internet, a technical viewpoint of the internet, how did the internet developed? कैसे develop हुआ internet? Who governs the internet? इंटरनेट को कौन चला रहा है? नेक्स्ट, इंटरनेट का कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में सीखेंगे लाइक वर्ल्ड वाइड वेब, वेब सर्वर, वेब क्लाइंट्स, वेबसाइट्स, वेब पेजेस एंड वेब ब्राउजर्स. These are the terminologies: blogs, news groups, HTML, web addresses, email addresses, how to downloading and uploading files from remote sites, what are the internet protocols, remote login and file transfer protocols. तो यहाँ पे हम लोग इन सब के बारे में डिटेल्स में सीखेंगे. नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. हाउ डिड द इंटरनेट डेवलप? मन में एक क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट कैसे डेवलप हुआ हम लोग के बीच में. इन 1969 द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DOD of the United States of America started a network of 4 computers to exchange and share their data, called as Advanced Research Project Agency Network, basically known as ARPANET. It was started with 1 computer in California and 3 in Utah. तो उन लोगों ने क्या किया था? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने उन लोगों ने 4 कंप्यूटर्स के बीच में एक कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया था कि कुछ इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए. तो उन लोगों ने क्या किया था? 4 कंप्यूटर्स को उन लोगों ने सेटअप किया था. एक यूनिवर्सिटी, 4 यूनिवर्सिटी में, एक कैलिफोर्निया में था, बाकी जो 3 था वो यूटा में था. तो उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक यूनिवर्सिटी में दूसरा एक यूनिवर्सिटी में कैसे एक डेटा को ट्रांसफर किया जाए. तो उस प्रोजेक्ट को उन लोगों ने नाम दिया था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, बेसिकली नोन एज ARPANET. वहां से स्टार्ट हुआ. उसके बाद एक यूनिवर्सिटी में उन लोगों ने उसको स्टार्ट किया, उसके बाद दूसरा यूनिवर्सिटी में, तीसरा यूनिवर्सिटी में, ऐसे डे टू डे क्या हुआ, ग्रो हुआ. उसके बाद धीरे धीरे द नेटवर्क ग्रीव बिगर एंड गेव बर्थ टू ए प्रेजेंट डे वेरी पॉपुलर इंटरनेट. ओके, सो ए टेक्निकल व्यू पॉइंट ऑफ इंटरनेट. सो बेसिकली व्हाट इज प्रोटोकॉल्स? हम लोग सुनते आ रहे हैं प्रोटोकॉल्स क्या है. So every network and every computers in a network exchange information according to certain rules called protocols. Basically protocols क्या है? These are certain rules. So protocols are the set of rules that computers use to communicate logically. मतलब एक computers को दूसरा एक computers तक एक अगर communication करना है, there are some certain rules. उस rules को हम लोग बोलते हैं protocols. So what are the most commonly used protocols? TCP and IP. TCP stands for Transmission Control Protocol and IP stands for Internet Protocol. So what is routers and modems? ये routers and modems क्या है? Routers are the devices that direct internet traffic by determining the best path that can be taken. यहाँ पे लिखा है that direct internet traffic by determining the best path that can be taken. routers का काम क्या है कि एक जगह से दूसरा एक जगह तक, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरा एक कंप्यूटर से अगर डेटा को एक्सचेंज करना है, उसको ट्रांसमिट करना है, तो बेस्ट पाथ कौन सा है, रूट कौन सा है, उसको चूज कौन करेगा? राउटर्स उसको चूज करके देगा. एंड व्हाट इज मॉडेम?
modems help to connect to the internet through telephone cable lines. मतलब यहाँ पे मोडेम क्या होता है, कुछ टेलीफोन केबल लाइंस होता है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन आता है, उसके बाद हम लोग मोडेम के साथ हम लोग अपना राउटर्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड राउटर से हम लोग अपना घर में अपना इंटरनेट कनेक्शन, हम लोग अपना मोबाइल फोन या तो हम लोग अपना पीसी में हम लोग कनेक्ट करते हैं। दीज आर द पिक्टोरियल डायग्राम हाउ मोडेम एंड राउटर्स वर्क्स। ये इंटरनेट है, यहाँ पे कुछ सर्वर्स है लाइक गूगल का, कोरा का, विकिपीडिया का सर्वर्स है। यहाँ से क्या हो रहा है, इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, सम आईएसपीस। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो लोग इंटरनेट को प्रोवाइड करते हैं लाइक एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, दीज आर द आईएसपीस। तो इंटरनेट कनेक्शन आईएसपीस क्या करेगा, हम लोग को मॉडेम मॉडेम तक लेके आएगा। मॉडेम हम लोग का घर में या तो कोई एरिया में रहते हैं, तो थ्रू मॉडेम हम लोग इंटरनेट कनेक्शन अपना राउटर तक लेके आते हैं। तो राउटर कहाँ पे रहता है, बेसिकली सबने देखा ऐसा एक डिवाइस अपने घर में, तो ये क्या है, राउटर। तो राउटर का काम क्या है, वो कनेक्शन को लेके आता है और कनेक्शन को वो सेंड भी करता है। मतलब यहाँ से हम लोग जो भी रिक्वेस्ट करेंगे राउटर उसको सेंड भी करेगा, और इंटर यहाँ से सर्वर से जो भी रिक्वेस्ट आएगा राउटर उसको एक्सेप्ट भी करेगा। तो दोनों काम करता है। तो राउटर्स क्या है, राउटर्स रूट्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा ऑफ्टन बोथ वाइड एंड वायरलेस। तो यहाँ पे राउटर से हम लोग क्या करते हैं, वाइड कंप्यूटर्स, वाइड प्रिंटर्स और जितना सारा वायरलेस हम लोग का लैपटॉप या मोबाइल फोन से हम लोग राउटर से कनेक्ट करते हैं। सो ये एक बेसिक पिक्टोरियल डेफिनेशन है राउटर्स एंड मोडेम का। नेक्स्ट, हाउ डज इंटरनेट वर्क। ये इंटरनेट काम कैसे हो रहा है, ये बाहर से तो हम लोग ने देखा, लेकिन बिहाइंड द सीन हाउ इंटरनेट वर्क्स, ये काम कैसे कर रहा है। सो बेसिकली देयर आर टू अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इंटरनेट। पहला जो है दैट इज कॉल्ड क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर, एंड द सेकेंड इज टीसीपी आईपी आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर मतलब पता ही है व्हाट इज क्लाइंट हम लोग, एंड व्हाट इज सर्वर जो एक बेसिकली पावरफुल कंप्यूटर्स होता है जहाँ पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। तो देखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, टीसीपी आईपी क्या है। टीसीपी मतलब टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या है, प्रोटोकॉल है जहाँ पे एक जगह से लेके दूसरा एक जगह तक कैसे एक मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है, तो वो काम कौन कर रहा है, टीसीपी कर रहा है। एंड आईपी क्या होता है, पता ही है सब लोगों को कि आईपी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। हर एक डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, यहाँ पे ये सब क्लाइंट है, दीज आर द क्लाइंट्स, एंड ये क्या है, सर्वर है। कोई भी एक सर्वर, गूगल का या तो माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी एक सर्वर है, यहाँ पे इंटरनेट है। तो जब भी हम कोई भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं अपना वेब ब्राउजर से, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ तक जाता है, डायरेक्टली वो रिक्वेस्ट सर्वर तक जाता है, सर्वर तक रिक्वेस्ट जाता है। और सर्वर वो पर्टिकुलरली जो भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं उस रिक्वेस्ट को वो क्या करेगा, फाउंड करेगा। वो रिक्वेस्ट को मिलने के बाद डायरेक्टली वो सर्वर हम लोग का मशीन में वो क्या करेगा, डायरेक्टली ब्राउजर में रेस्पॉन्ड करेगा। बेसिकली यहाँ पे काम दो होता है, दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स जो भी हम लोग मोबाइल फोन से भी कर रहे हैं, हम लोग अपने डेस्कटॉप से भी कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक ही काम कर रहे हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम लोग रेस्पॉन्स को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, टीसीपी आईपी मॉडल आर्किटेक्चर। टीसीपी आईपी, यहाँ पे हम लोग टीसीपी आईपी के आईपी मॉडल आर्किटेक्चर के बारे में सीखने से पहले हम लोग को जानना है व्हाट इज टीसीपी एंड व्हाट इज आईपी। तो बेसिकली टीसीपी क्या है, टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का काम क्या है, यहाँ पे एक एक सेंडर है ए, एक यहाँ पे एक सेंडर है बी। तो सेंडर ए एक मैसेज कर रहा है सेंडर बी तक, तो ये मैसेज जो ट्रांसफर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको कौन ट्रांसफर करेगा, टीसीपी। कैसे ट्रांसफर करेगा, विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। यहाँ पे ए के पास बी का आईपी एड्रेस रहेगा, तो वो क्या करेगा, मैसेज को सेंड करेगा। तो ये मैसेज यहाँ से डायरेक्टली बी तक चला जाएगा। तो उसके बीच में काम कैसे हो रहा है, जो पहला स्टेप है दैट इज कॉल्ड द टीसीपी प्रोटोकॉल ब्रेक्स द डेटा इनटू पैकेट्स। जो भी हम लोग का मैसेज होगा, कोई भी हम लोग का डेटा मतलब जो भी मैसेज होगा दैट इज कॉल्ड डेटा, और डेटा क्या होगा, ब्रेक इनटू स्मॉल स्मॉल पैकेट्स।
ये जो डेटा होगा वो स्मॉल पैकेट्स में ब्रेक होगा, उसके बाद राउटर्स ये डेटा को ट्रांसमिट करेगा। राउटर्स ट्रांसमिट करेगा, जो बेस्ट पाथ होगा, ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ाई किया कि राउटर्स का काम क्या होता है, चूज द बेस्ट पाथ, वो जो इजीएस्ट पाथ होगा उसको चूज करेगा। तो उसके बाद लास्ट में क्या होगा, स्टेप 3, द टीसीपी प्रोटोकॉल रिजेंबल्स द पैकेट्स इनटू द ओरिजिनल होल। मतलब यहाँ पे सेकंड स्टेप में जो हो रहा है, द पैकेट्स ट्रेवल फ्रॉम राउटर्स टू राउटर्स ओवर द इंटरनेट अकॉर्डिंग टू द आईपी प्रोटोकॉल। लास्ट में जाके जहाँ पे यहाँ पे लास्ट एंडिंग में जो भी मैसेज आएगा, पैकेट्स आएगा, ब्रेक होके आएगा, उसको टीसीपी फिर से उसको रिजेंबल करेगा। रिजेंबल करने के बाद एक होल पैकेज बन जाएगा, जो मैसेज होगा वो मैसेज ब्रेक होने के बाद फिर से उसको रिजेंबल करने के बाद एक होल पैकेट बनेगा, उस होल पैकेट को रिसीव करेगा। जैसे ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था ए एन बी का। तो दैट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट, हु गवर्न्स द इंटरनेट। तो यहाँ पे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये इंटरनेट को कौन चला रहा है, हु गवर्न्स द इंटरनेट। The internet is not governed by any one person or any particular organization. Basically, there is no any governing body of the internet. Actually, different volunteers group have been formed to develop and help to coordinate and guide the technical aspects of the internet. मतलब यहाँ पे जितना सारा टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उसको गाइड करने के लिए कुछ मतलब कुछ ग्रुप बन के आया, कुछ ग्रुप्स है, लाइक ग्रुप्स। हम लोग कोई भी कंपनी उसको नहीं बोल सकते। देयर आर सम ग्रुप्स। जो पहला ग्रुप है दिस इज कॉल्ड इंटरनेट आर्किटेक्चरल बोर्ड, IAB। उसका उन लोगों का काम क्या है, दिस ग्रुप्स लुक आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट स्वीट ऑफ प्रोटोकॉल्स। मतलब वो लोग इंटरनेट का जो प्रोटोकॉल्स है उसके बारे में वो लोग डेवलप कैसे हो रहा है, कैसे काम करेगा, उसके बारे में डेवलपमेंट के बारे में वो लोग देखते हैं। सो यहाँ पे दो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF एंड इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स IRTF। इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स IRTF। सो IATF का काम क्या है, these are the responsible for developing and maintaining communication protocols, resolving problems and coordinating new services। जो न्यू सर्विसेज है वो लोग इसको कोऑर्डिनेट करता है, कुछ प्रॉब्लम्स अगर हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो IRTF है उसका काम क्या है, द बॉडी लुक्स फॉर लॉन्ग टर्म रिसर्च इशूज। कोई अगर लॉन्ग टर्म में कोई अगर रिसर्च इशू, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई अगर कैसे काम होगा, उसका कोई भी इशू होगा तो उसको कौन सॉल्व कर रहा है, ये IRTF। सेकेंडली यहाँ पे और एक ग्रुप है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल काउंसिल फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, ICNN। ये ऑलरेडी नोन है ICNN, सबको मैक्सिमम को पता होगा ICNN का काम क्या है, दिस ग्रुप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस रजिस्ट्रेशन सर्विसेज। मतलब कोई भी एक नाम हो, कोई भी एक पर्टिकुलरली डोमेन नेम हो, कोई भी एक सपोज किसी को अगर फाइंड करना है उसका एक नाम होगा, तो पर्टिकुलरली कोई भी एक सर्विसेज को रजिस्टर्ड करने के लिए वो नाम प्रोवाइड कौन कर रहा है, नेम्स एंड नंबर्स को ICNN प्रोवाइड कर रहा है। IP एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी एक डोमेन नेम प्रोवाइड कर रहा है, ऑल सब ये पूरा काम कर रहा है ICNN। लास्ट में जो आता है दैट इज कॉल्ड वेरी वेल नोन वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज कॉल्ड WWW। ये जो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है, ये क्या है बेसिकली, इसका काम क्या है, ये एक्चुअली एक ग्रुप है जो मतलब डेवलपमेंट, एक्चुअली ये बेसिकली MIT के साथ जुड़ा हुआ है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बेसिकली वो लोग डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है, पूरा कंप्यूटर्स के मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड वेब, पूरा इंटरनेट के ऊपर। सो बेसिकली यहाँ पे जो डेवलपर्स है वो MIT से बिलोंग करते हैं, MIT। और उसका जो मेन जो फाउंडर था उसका नाम था टिम बर्नर्स-ली। ओके, बताइए सबको इसके बारे में। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब। अभी हम लोग सीखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज वेरी वेल नोन। WWW is an internet-based network of servers that are interconnected through hypertext. It is the most popular method of accessing internet. Hypertext documents on internet are known as web pages. WWW क्या है, कोई भी अगर हम लोग इंटरनेट में अगर सर्च करेंगे तो उससे पहले हम लोग WWW लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो भी इंटरनेट में जो भी डॉक्यूमेंट है वो WWW से रिलेटेड है। अगर हम लोग WWW अगर यूज नहीं करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट इंटरनेट में अवेलेबल नहीं है ऐसा शो करेगा। ठीक है। सो कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको सर्च करने से पहले उसका एड्रेस से पहले हम लोग को WWW टाइप करना ही है। ओके।
सो इट इज अ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन इंटरनेट आल्सो नोन एज वेब पेजेस। यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पे जो भी www में जितना सारा मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है वो हाइपरटेक्स्ट से रिलेटेड है। वेब पेजेस आर क्रिएटेड बाय यूजिंग ए स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो वेब पेजेस बनता है ऑलरेडी नोन, सबको पता ही है, वो HTML से बनता है। नेक्स्ट, वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर वेयर द वेब कंटेंट इज स्टोर्ड। वेब सर्वर क्या होता है? एक कंप्यूटर ही होता है, एक मशीन ही होता है, लेकिन बहुत पावरफुल होता है, जहाँ पे बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी स्टोर होता है। A web server can be one of the following: a computer program which delivers web content using HTTP over the World Wide Web। वेब सर्वर का काम क्या है? कोई भी उसका डॉक्यूमेंट है वो क्या करेगा, मतलब या वेब ब्राउजर से हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट यहाँ तक आएगा थ्रू इंटरनेट, उसके बाद रेस्पॉन्स क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग का सिस्टम में रेस्पॉन्स आ जाएगा। तो उसका काम ही है कि वो क्या होगा, मतलब जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसके 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 पास वो क्या करेगा, उसको रेस्पॉन्ड करेगा। नेक्स्ट, वेब ब्राउजर्स। Web browsers in an application software that allows us to view and explore information on the web। बेसिकली ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर एक जहाँ पे हम लोग मतलब कोई भी क्वेरीज होगा हम लोग वहाँ पे टाइप करते हैं। यूजर्स कैन रिक्वेस्ट फॉर एनी वेब पेजेस बाय जस्ट एंटरिंग ए यूआरएल इनटू एड्रेस बार। मतलब जो ऊपर में एड्रेस बार होता है वहाँ पे हम लोग क्या है, एड्रेस को टाइप करेंगे ब्राउजर में। Web browser can show text, audio, video, on animation and more. It is the responsible of web browser to interpret text and commands contained in the web page। So basically यही है, वेब ब्राउजर क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम लोग इंटरनेट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो these are the example of internet web browser: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari। And next, web client। What is web client? A web client is an application like Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ऑलरेडी हम लोग ने देखा, रनिंग ऑन ए लोकल डिवाइसेस, डेस्कटॉप, नोटबुक, सेल फोन। जो हम लोग का डेस्कटॉप में जो भी ब्राउजर यूज हो रहा है उसके बारे में बोला यहाँ पे। डेट रिक्वेस्ट एंड यूजेस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेब सर्वर। मतलब वेब क्लाइंट मतलब जो हम लोग ही है, मतलब जो भी हम लोग अपना सिस्टम में जो भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वेब क्लाइंट मतलब हम लोग डायरेक्टली रिलेटेड किससे है, वेब से है। यानी एप्लीकेशन मतलब ये एक वेब क्लाइंट मतलब क्या है, हम लोग का सिस्टम है जो जहाँ से हम लोग अपना एक रिक्वेस्ट हम लोग किसको कर रहे हैं, सर्वर को एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग कौन सा कोई हम लोग डेस्कटॉप भी यूज कर सकते हैं, अपना लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं, हम लोग अपना मोबाइल फोन से भी जो भी यूज कर सकते हैं। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, अपना ब्राउजर से हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे किसको, वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो वेब क्लाइंट यही है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, वेब पेज। A web page is written in HTML and is stored in a web server। A web page is a digital page which may contain text, hyperlinks, videos, audios, images, tables, etc। यही क्या है, वेब पेज है। वेब पेज में क्या है, each web page is identified by a unique address called यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या है, URL। ओके, एवरी वेब पेज का एक क्या होता है, URL होता है। एंड वेबसाइट्स। A website is a collection of related web pages containing images, videos or others digital assets hosted on a web server। ये जो वेबसाइट है वो कहाँ पे होस्ट मतलब जहाँ पे रहता है, hosted on a वेब सर्वर पे रहता है। ठीक है, these pages are written in HTML and can be accessed via internet। A website is a hosted on a web server on the World Wide Web। Each वेबसाइट इज ओन्ड एंड मैनेज बाय इंडिविजुअल्स, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। ये जो वेबसाइट है ये कोई पर्सनली कोई इसको बनाता है, किसी का पर्सनली होता है, कोई कंपनी का होता है या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन का होता है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल, disney.com इज ओन्ड बाय वर्ल्ड डिज्नी कंपनी, लाइक microsoft.com इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, एक्सेट्रा। सो थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे ब्लॉग्स, न्यूज ग्रुप्स, बाकी जो इंटरनेट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू गाइस, ऑल ऑफ यू।